गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा अलग होगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस एज टू हाउ नेशंस फाइट, किस तरीके से लड़ते हैं और क्यों उस तरीके से लड़ते हैं। क्या उनका इकोनॉमी के ऊपर है, क्या उनका कल्चर के ऊपर है, क्या उनका अ, खुद का अंदरूनी स्थिति के निर्भर है। There's so many factors which go into why nations fight the way they fight. Uh, about 3 years back, I wrote an article on this subject, right, in Gunner Shot, and I just published it on my blog. And a lot of people liked the concept of what I wrote. It was a very naive piece. At that time, I examined only 5 countries, and then people said, "Look, you not examined Israel. You're not examined Russia. Without them, this examination is a bit incomplete." So I said, okay, let me, next time I do that, let me do the try out both. तो इसीलिए आज मैंने ये ट्राई किया। ओके, ये ये जो प्रेजेंटेशन है या डिस्कशन है वो इस तरीके से चलेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप भी अपना आइडियाज दीजिए। मैं पहले ये जो 7 देश हैं जिनके फ्लैग लिखे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप उनको देखिए जो भी मैं बात करने वाला हूँ, और उसके बाद आप अपना विचार दीजिए। आई वांटेड टू बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव। हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमने मिस आउट कर लिया हो, और ये तो होगा ही क्योंकि एक देश को और उसका आर्मी को 2 मिनट में थोड़ी ना वर्णन कर सकते हैं, टाइम लगता है। और कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो हमें नहीं सूझा, आपको सूझा होगा, और आई टेक इट एंड देन आई सी मे बी नेक्स्ट टाइम आई गेट अ पैनल टू डिस्कस दिस, एंड मे बी आर्मी बाय आर्मी and pit it against India and to see where we are. But that depends on how much response I get from all of you and how much you send this to your friends, because many times we have to see where we stand against other armies. This is the first attempt at that. Okay, so let's start. So the first nation, Pakistan, which for us uh, is probably the most important nation, as an emotionally or otherwise. और इसके बारे में और इसके साथ हमारा 3-4 लड़ाई हो गया। 3 पक्का लड़ाई, एक कच्चा लड़ाई, कारगिल, और एक प्रॉक्सी वॉर अभी तक चल रहा है वो। सो पाकिस्तान एंड व्हाटएवर इज देयर इन पाकिस्तान आर्मी इज क्लोज टू आवर हार्ट, इसीलिए। सो हाउ डू आई कैप्चर पाकिस्तान आर्मी? आई से पाकिस्तान fights to lose. It has always fought to lose. Why does it fight the way it fights? Because it's a weak state. It lacks depth. And most importantly, it has only one single source of water from north to south, Indus. It has to protect that Indus basin. If the Indus basin goes, Pakistan goes. It needs water. And large part of its behavior is because of lack of water. It needs water from Kashmir. That's why it wants Kashmir, not for any other reason. The second reason, and the core reason why it fights the way it fights, it has an anti-India population which has increasingly been radicalized. Right? रोज इसका रेडिकलाइजेशन का जो सिलसिला है वो हर रोज बढ़ता गया है। So one has to be cognizant of this. दूसरा, उसका आर्मी जो है वो it takes a disproportionate size of the nation's income and puts it in armed forces, लड़ाई के लिए, तैयारी के लिए।
It bankrupts the nation. और उसके हिसाब से आर्मी इज फर्स्ट, नेशन लेटर. और सबको पता है कि पाकिस्तान इज एन आर्मी विद अ नेशन. ओके. पर बात यह है कि वो क्यों ये सब कुछ है, क्योंकि 71 में इट हैज लॉस्ट हाफ द नेशन, और उसका बदला लेना चाहता है. और उसके बदले का भावना के साथ पूरा व्यवहार होता है. द वे इट फाइट्स is with a degree of vengeance. That is why it fights to lose. Now, अगर हम देखेंगे, it knows in a conventional war against India, it can never win. It has never won. It will never win. Hence, it plays at both ends of the spectrum. At one end of the spectrum, it talks of nuclear war or its nuclear power. At the other end of the spectrum, it goes in for a proxy war with jihadis and everything else down below. Right? So it believes in using uh, state sponsored terrorism as a tool of war. Pakistan will always fight dirty. ये हमारा तजुर्बा है सदियों से. So ये we should expect that hereafter. Now, a large part of the way Pakistan thinks, the Pakistani army thinks, and the Pakistani army behaves is due to the fact Pakistan as a nation believes it's in the geostrategic front line. It was in the geostrategic front line against Russian expansion to south. It was in the geostrategic front line in the global war against terror. And it was in the geostrategic front line of the Islamic bomb. Okay. So it feels that it is a warrior state, and its location, which is at the crossroads of many places, um, seas, land, everything, gives it that special privilege to be a warrior state. Okay. And this state with this kind of ideology, combined with the fact that its cultural ideology of it doesn't know, I mean, it is definitely anti India. It feels it could be Turkic in nature, Persian, or it could be Arab roots. So this puts it constantly at war with itself, और दूसरों के साथ भी हर वक्त लड़ाई करता रहता है. ओके. और इट इज अ रेंटियर स्टेट फॉर द हाईएस्ट बिडर. हर वक्त, हर रोज पाकिस्तान के इतिहास में उन्होंने अपने आप को बेच दिया जिसने भी ज्यादा पैसा दिया. ये इतिहास गवाह है. तो वो उसका लड़ाई भी दूसरों के लिए करता है ज्यादा, खुद के लिए नहीं करता. राइट. ये लड़ाई में इसका पैसा बनाने का चक्कर है. इसकी वजह से बाकी पूरा देश डूब गया है. ओके. ये बताया जाता है दैट पाकिस्तान इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी which has never won a war. In fact, it is the most professional army which has always lost the war. इसीलिए ये हेडिंग पाकिस्तान फाइटिंग टू लूज. पर कभी दुश्मन को you should not underestimate him. Pakistan army is fast, quick, aggressive, innovative, violent, and unscrupulous in battle. It has been described as the most dangerous force on earth, and it is the most untrustworthy. You can never trust it. And it has the capability of gaining tactical advantage, but loses strategically. आप कारगिल में देखिए, it put us on the back foot. 65 में देखिए, it put us on the back foot. 47 में देखिए, it put us on the back foot. उस वक्त पर उसका जीत हो जाता है. अगर लंबे टाइम में देखोगे, स्ट्रेटेजिकली हार जाता है. Even this proxy war, it has been carried out
If you see it in the larger context, it has lost. So ये है पाकिस्तान always fighting to lose. पाकिस्तान के बारे में तो हमें काफी ज्ञान है, और मेरे ख्याल में सब लोगों ने ये यू नो एवरीवन हैज अ व्यू अबाउट पाकिस्तान. तो ये है. एक सवाल है जो अभी पाकिस्तान के बारे में मैं लूंगा, वो ये है, सर, just a thought to entertain, will there be a time in future when India can buy Pakistan army, or is the anti-India statement so strong that this cannot happen? मैंने ये एक सवाल अभी इसलिए लिया है, इट्स नॉट टू से whether India can buy Pakistan army or not. आज या कल एक आर्टिकल निकला है फ्राइडे टाइम्स में, which talks of a nuclear east. He says, today war in this area cannot be won, so Pakistan should tread. उनका their whole story is about get Kashmir, but they cannot get Kashmir militarily. So they should strive on its economy and become rich and one day buy Kashmir. So here you have Aditya, you want to buy Pakistan and Pakistan wants to buy Kashmir. So so that's what I'm trying to tell you. इनका सोच कभी सुधर नहीं सकता. ठीक है, ये हर वक्त लड़ेंगे हारने के लिए. ओके, सेकेंड, चाइना, हमारा दूसरा प्रतिद्वंदी. चाइना के बारे में मैंने बड़ा सोचा कि इसका हेडिंग क्या दूं. फिर मेरे को ये आया है कि चाइना इज द ग्रे जोन wannabe सुपर पावर. ये ग्रे जोन में खेलता है ज्यादा, और ये इसका कल्चर और इतिहास में डूबा हुआ है. ये ये अमूमन हम समझते नहीं है. हम समझते हैं कि पाक चाइना विल गो टू वॉर विद एवरीवन. अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री, इट हैज नेवर गॉन टू वॉर आउटसाइड इट्स periphery, except when Mao was in chair and the Vietnam War. Otherwise, it has not gone anywhere. It has fought inside. What does China do? China is a go player. इनका एक गेम है गो. इट्स लाइक चेस. इसमें क्या है कि पोजिशनल एडवांटेज ढूंढता रहता है कि दूसरे को फंसा लो. तो चाइना जो है फंसाने के चक्कर में है, थ्रू ग्रे जोन वॉरफेयर, डेट ट्रैप वगैरह वगैरह वगैरह. फंसाता है, स्ट्रेटेजिकली फंसा देता है, गले पकड़ लेता है. इट प्लेस गो थ्रू अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर इन द ग्रे जोन, एंड इट इज अ मल्टी डोमेन प्लेयर. ये इंपॉर्टेंट है. आप जब चाइना के साथ लड़ाई करते हो, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल डोमेन्स. अगेंस्ट पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, आप आर्मी के साथ लड़ रहे हो, उसका आईएसआई के साथ लड़ रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, प्रोपेगेंडा नैरेटिव वॉर के साथ लड़ोगे. पर इनके साथ लड़ाई जो है 360 डिग्रीज है, मल्टी डोमेन. ओके, इट इज ऑलवेज सीकिंग अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज so that you are subservient to China. It corners its opponents. धकेल देता है आपको एक कोने में, फिर आपको चूस लेता है. और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में इट यूजेस कार्टोग्राफिक एग्रेशन. मैप बदली करके, तो भाई ये तो मैप हम के मुताबिक हमारा लैंड है. ये इसने साउथ चाइना से में किया, ताइवान में किया, अरुणाचल में किया, धीरे धीरे इसने कजाकिस्तान के साथ भी पहले किया था. तभी इनका वहाँ, कजाकिस्तान तो वीक स्टेट था, तो इट वेंट इन फॉर अ सेटलमेंट. सो go unrestricted warfare, positional advantage. Okay, that's it. It has superpower ambitions, let's not have any doubt. It wants to be the preeminent superpower. ये तो by 47 2047 with the strongest military on earth. Okay, और इसको हासिल करने के लिए वो पानी की तरह अपने मिलिट्री में पैसा डुबा रहे हैं.
कि उसका कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। एंड दोज कैपेबिलिटीज आर नॉट ओनली इन लैंड, एयर एंड सी, बट इन साइबर, स्पेस, एनर्जी, इकोनॉमिक्स, थ्री वॉरफेयर, सलामी स्लाइसिंग, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? हाई टेक कन्वेंशनल वेपन्स इट यूजेस। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ये हाईटेक वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल ये ला रहा है, ये कभी नॉट यूज्ड इन बैटल। हम सबको पता है इसने, क्योंकि 79 के बाद लड़ाई हुआ ही नहीं। हाईटेक वेपन्स अभी आ रहे हैं, क्या ये हाईटेक वेपन्स का उपयोग होगा लड़ाई के अंदर? ये एक सवाल है। क्या ये हाईटेक वेपन सिस्टम्स जो चाइना हर रोज एक डिप्लॉय कर रहा, क्या ये काम आएगा? ये भी पता नहीं। पर इसका जो थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, प्रोपागेंडा एंड लीगल वॉरफेयर इज ओरिजिनल, इससे बहुत सीख है, एंड वेरी इफेक्टिव, एंड इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस, especially when it plays the position of advantage and cornering। करता इतना है पर चढ़ा देता उतना है, चाहे उसमें सच हो या ना हो। तो उससे क्या है कि इससे पहले कि इसके साथ लड़ाई मोड़ लो, आपका मानसिक हालत वीक कर देता है, और आप पहले जब लड़ाई में घुसते हो तो आपको डाउट है, क्या मैं चाइना के साथ जीत पाऊंगा? जब तक आपका दृढ़ संकल्प नहीं है और आप पक्का नहीं है आपके दिमाग में कि मैं चाइना को हरा सकता हूं, आप हरा नहीं सकते। क्या हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर ये दृढ़ संकल्प है? पूरा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, गलवान से हमने बहुत सीखा, कैलाश रेंज के ऑपरेशन में बहुत सीखा। उसके बाद में मैंने बहुत अच्छे ऑपरेशंस किए हैं। डोकलाम में हमने उनको रोक दिया, और हम एकमात्र देश है जो अ, चाइना और पीएलए के साथ को रोक दिया। पर बात यह है कि क्या ये सब करने के बावजूद हम चाइना को रोक पाए हैं, या उसका अपना रवैया बदलाव करने के लिए कुछ जीत हासिल हुआ है उसमें? मेरे ख्याल में नहीं। चाइना का रवैया वही है, मौका ढूंढ रहा है भारत के साथ। ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पहचानना है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? और इसका जितना भी कैपेबिलिटी है वो अनटेस्टेड है। चाइना है शाइड अवे फ्रॉम यूजिंग फोर्स ऑलवेज। ये कभी लड़ाई करता नहीं है, एक सवाल है ये, तो उसको अभी कर देते हैं। इवन दो चाइना इज थिंकिंग टू बी अ सुपर पावर, व्हाई डजंट इट कम टू एड इन रेड सी एरिया? क्योंकि लड़ता नहीं है, लड़ने के लिए काबिल नहीं है, इसको पता है। आप देखिए, आज हमारा नेवी ने तीसरा बार रेड सी में एक हाईजैक अटेम्प्ट को नकार कर दिया। लगातार 3-4 दिन में 3-4 वाकया हो गई। क्या ये चाइना कर पाएगा? मेरे ख्याल में नहीं। क्या करने का हौसला है उसमें? मेरे ख्याल में नहीं। ये तो लड़ाई से भाग जाएगा। अभी तक जितना बोल लिया, हमारा पास इतना है, वो है, वगैरह वगैरह। ताइवान जैसे छोटा देश को डराने में बहुत सक्षम है। फिलीपींस के साथ पंगा मोड़ने के लिए बहुत सक्षम है। भारत के साथ पंगा मोड़ने के लिए बहुत सक्षम था 2020 से पहले, क्योंकि तब भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी नहीं, अभी नहीं करेगा ये। ये तो बोलना आसान है, आई विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी ऑन द अर्थ, पर जब मौका आया है ये पीछे हट गया, इसीलिए मैंने वो सवाल भी लिया। दूसरी बात, ये कैजुअलिटीज ले नहीं सकता। जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ, ये एक सिंगल मैन
सिंगल चाइल्ड फौज है, अगर वो सिंगल चाइल्ड मर गया तो ये कैजुअलिटीज ले नहीं सकता. ओके, it's got a very high rate of development and deployment of disruptive technologies and militarization of its economic power through checkbook diplomacy. पैसा के साथ सबको खरीद लेता है, पैसा इस्तेमाल करता है इन lieu of weapon systems, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हम सबको पता है. And it goes in for the silent and soft kill to control nations. आज के दिन वो मालदीव्स में हो रहा है, ये स्ट्रेटजी शुरू हो गया, वो इस्तेमाल कर रहा है लोगों को. फ्री वेयर स्ट्रेटजी, सलामी स्लाइसिंग, सब कुछ हो रहा है. ये पहला स्टेज है जब उसने उकसा दिया मालदीव्स को कि स्थिति बदल गया. स्थिति का बदलाव फर्स्ट स्टेज ऑफ सलामी स्लाइसिंग. Next, it will enter, and then third, it will shut you out. That's the plan. Let us see how we do it. It's adapted using catch paws to keep its adversaries and contestants off balance. It has always used. देखिए, catch paws का मतलब दूसरे को सहायता लेना, दूसरे को चलाओ. पाकिस्तान को चलाता है हमारे अगेंस्ट, नेपाल को चलाता है हमारा अगेंस्ट, मालदीव को चला रहा है हमारा अगेंस्ट, अपना श्रीलंका को चलाता है अपने अगेंस्ट. तो इट यूजेस दिस टैक्टिक्स दूसरे देश के जरिए, इनडायरेक्ट अप्रोच. ठीक है, जिससे है यू आर ऑलवेज इम्बैलेंस्ड. दैट्स द होल आइडिया. ओके, इट कीपिंग इट्स एडवर्सरीज एंड contestants ऑफ बैलेंस. इट यूजेस नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट यूएसए. ठीक, ओके. ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में हम बात करते हैं, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द गो थियरी. इट ऑल्सो यूजेस ईरान टू कीप यूएसए ऑफ. And it has a tremendous amount of synergy of politico-military fusion and military-civil fusion. ये एक इनका नेशनल स्ट्रेटजी है. तो बहुत चीजें हैं हमें सीखने के लिए चाइना से, राइट. कुछ हमें इख्तियार करने के लिए, कुछ उसको हराने के लिए. ओके, तीसरा देश ईरान, द शैडोई इनोवेटर. अगर ईरान को आप देखें, और मैं ईरान को पढ़ रहा हूँ 1978 से, ठीक है, जब से ईरान इराक वॉर शुरू हुआ था 1980 में, तब से मैं पढ़ रहा हूँ ईरान और ईरान को. ये हर वक्त इट प्लेस फ्रॉम द शैडोज. इट्स अ शैडोई इनोवेटर. इट्स इनोवेटर. ईरान से जितना हम सीख सकते हैं उतना कम है. ठीक, ओके. ईरान फाइट्स फ्रॉम द शैडोज. कभी आगे नहीं आता, पीछे से वार करता है, अंधकार से वार करता है, अंधेरे से वार करता है, अंधेरे में बैठते हुए वार करता है. एंड इट पंचेस अबव इट्स वेट. देखिए, इसके अगेंस्ट ऑयल एम्बार्गो है, यूएस सैंक्शंस हैं, और न्यूक्लियर रिसर्च में कर्ब्स हैं. फिर भी ये सब पार करके अपना काम करा रहा है. It does not have nuclear or space capability or a great military machine. It does not have an air force. एयर फोर्स इसका पुराना है. इसको कोई एयरक्राफ्ट देता नहीं, बेचता नहीं है. इसके जितने एयरक्राफ्ट हैं ये सोवियत जमाने के एयरक्राफ्ट हैं, कुछ कुछ अमेरिकी जमाने के एयरक्राफ्ट हैं जब शाह ऑफ ईरान था. ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ता नहीं. इसने क्या किया है? इट हैज मिलिटराइज्ड शियाइज्म, रिलीजियस मिलिटरिज्म, और प्रॉक्सीज बना लिया. चाहे वो इराक में क्यों ना हो, चाहे सीरिया में क्यों ना हो, या लेबनान में, या यमन में, या गाजा में. हम सबको पता है हमास, हौतीस, हिजबुल्ला, कतैब हिजबुल्ला, इराक रेवोल्यूशनरी फोर्स, इन सब को करके इसने अपना पावर फैला दिया पूरा वेस्ट एशिया में. सब डरते हैं ईरान से, और ये गेम खेल रहा है. आज उसने बोल दिया कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, यूएसए को सिग्नल दे दिया हम लड़ना नहीं चाहते, पर लड़ाई करवा रहा है दूसरों के जरिए. तो ये है, इट इज एग्रेसिव
It has innovative out of the box use of technology, deployed at least cost with spectacular effect. क्योंकि इसके आगे सैंक्शंस हैं, इसको टेक्नोलॉजी नहीं मिलता, इसमें खुद आत्मनिर्भर हो गया। जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत दिमाग लगा के इस्तेमाल करता है। ईरान इराक वॉर के बाद, जब नॉट ईरान इराक वॉर, अभी जब अमेरिकन इराक में थे और इनका ईरान सपोर्टेड मिलिशिया जो है ये ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, ये सोलेमानी, जनरल सोलेमानी जिसका असैसिनेशन हुआ था, ही वाज अ टेरर फॉर अमेरिकन्स, जिसको नहीं पता है। They formed something called explosively formed projectiles. It was something like a claymore mine for tanks. और अमेरिकन इससे डरते थे, उन्होंने बहुत लॉसेस झेला इराक के अंदर। लिम्पिट्स माइंस इस्तेमाल किया गल्फ में कि जहाजों को डुबोने के लिए 3-4 साल पहले, ठीक है। अरामको के अटैक्स इसी ने मास्टरमाइंड किया है, राइट। और इसके जो रॉकेट फोर्स है, इतने रॉकेट हैं इसके पास जिसके वजह से इसकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स ना होते हुए भी इट यू नो इट इज मेनेसिंग, इट्स रॉकेट फोर्स इज मेनेसिंग। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द वे ईरान हैज इनोवेटेड, कि जो भी है उसके साथ पास, उसके साथ किस तरीके से लड़ना है। ओके। इसके पास कुछ फोर्स, खुद फोर्स जो है ये सुलेमानी, जनरल सुलेमानी ने बनाया, जिसका असैसिनेशन हो गया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CIA एंड स्पेशल फोर्सेस। इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करता है, फोर्स भी एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट करता है। ये एक अनोखा फोर्स है और किसी के पास नहीं है ये फोर्स। अच्छा, ईरान जो है, इट इज फियर्ड बाय सुन्नीस एंड सऊदीज इन पर्टिकुलर। सऊदीज से डरते हैं। इट इज रेस्पेक्टेड बाय USA। चाहे कुछ भी बोले, USA को पता है कि ईरान इज अ टफ फाइट, और इसराइल को अपने, इट कीप्स इसराइल ऑन इट्स टोस। It has a very close knit relationship between its military and political structure, very close knit। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जनरल सुलेमानी जो है वो नंबर 2 थे इसराइल के स्ट्रक्चर के अंदर। पहले उनका मौलवी थे, कुमैन, क्या, मुल्ला अयतुल्लाह, और उसके बाद इसका नंबर था। ईरान इराक वॉर अगर हम पढ़ें तो आपको इसका व्यक्तित्व पता चलता है। एक जमाना था पहले 3 महीने के अंदर इराक had taken over half of Iran. In the next 8 years, it was all wrapped back. जिस तरीके से इसने वो जो होस्टेज पकड़ा था अमेरिकन एम्बेसी का 70s में, कार्टर एरा में, और उसने कार्टर का रेस्क्यू अटेम्प्ट नाकार कर दिया, इस समथिंग पढ़ने की जरूरत है। आजकल कोई पढ़ता नहीं है ये सब। और ईरान इज टू बिग टू इन्वेड, कोई इसको इन्वेड नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में पर्सनली, आप कुछ भी बोलो ईरान के बारे में, पर इंडिया को ईरान से सीखने के लिए बहुत चीजें हैं। एग्रेसिवनेस, यूज ऑफ जो भी है, whatever it has to, you know, handle the situation. It fights with what it has. Okay. Okay. Russia. Russia is the lost bear hug. एक जमाने में बताया जाता था कि रशियन मिलिट्री के साथ अगर आप निपट लोगे, यू आर इन अ बेर हग। आपका धीरे 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 इट विल स्क्वीज यू और लाइफ आउट। बट दैट्स नॉट सो एनीमोर। क्यों? डिक्लाइनिंग डेमोग्राफी, ज्योग्राफी इज ह्यूज, लोग है ही नहीं, इलाका बहुत बड़ा है, पर इसका मिलिट्री लेगेसी बहुत लंबा चौड़ा है, एंड इट्स अ प्राउड मिलिट्री लेगेसी, रिच हिस्ट्री ऑफ ब्रेविंग ऑड्स। याद रखिए, नाजीज केम अप टू स्टालिनग्राड इन मॉस्को, आधा द मेन पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर उनको धकेल दिया गया और नाजी को खत्म कर दिया गया है। People don't read history, but the the Nazi war machine was broken more by Soviets than the Allies.
पिक्चर ज्यादा उसके ऊपर एलाइज के ऊपर आए हैं, बट एक्चुअल काम जो हुआ है वो रशिया में हुआ है, यूएसएसआर। आज तक इट रिटेन्स इट्स पावर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? बट इट्स वीक इकोनॉमिकली। it it is searching to be a superpower again, and अगर आप देखेंगे तो it still has a hand in most global conflicts. ये वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक? इससे भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। It tells you the limitations at what you can do with what you might be technically the best army, but other limitations kick in, which puts limitations on the whole story. Technologically independent, fully equipped armed forces with an extensive nuclear and space capability. Because, next, aggressive and experienced with a flawed manning system. कुछ मर्सनरीज इस्तेमाल करता है, कुछ इन्फेंट्री है ही नहीं इसके पास, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है इसका आर्म फोर्सेस के अंदर। बहुत सीख है इसके अंदर हमारी। आजकल, पहले तो इसका पॉलिटिको मिलिट्री कोहेजन वाज वेरी गुड, आजकल इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 2 साल हो गया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जो खत्म हो जाना चाहिए था पहले दो दो तीन हफ्ते के अंदर। इकोनॉमिकली लिमिटेड बट एनर्जी सरप्लस, तो लड़ाई करते कर सकता है, जारी रख सकता है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है। अगर ये आपके पास दोनों है तो आप लड़ाई करते रहोगे। ओवरऑल ट्रेड बैलेंस सरप्लस है इसका, capable of planning for long wars and executing its plans with purpose, पर फिनिश लाइन तक लेके नहीं जा पा रहा है। और इसका ओवरऑल पावर ड्यू टू इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक वगैरह वगैरह सीमित है। बनना चाहता है सुपर पावर, पर बन नहीं सकता, और इसमें भारत के लिए सीख है। आजकल में ये एक फैशन हो गया, आप सब बोल रहे हैं कि भाई हम सुपर पावर बन गए। हम सुपर पावर नहीं बने, हम रशिया जैसे एक पावर है। हम उतना ही, हमें वी शुड बाइट ऑफ ओनली व्हाट वी कैन चू। We shouldn't, think that we become a superpower already. Our military doesn't have all the pieces in place to support a superpower. Economy is not strong enough, and we have same problems of politico-military cohesion or lack of it in our system. वो हम बात करेंगे आखिर। इसराइल, इसराइल सबको पता है, परफॉर्म और पेरिश, या आप लड़ो या मरो। हर वक्त ये लड़ाई में है, जब से ये बना है 49 में, तब से लड़ रहा है हर रोज। इट्स अ टफ नट टू क्रैक, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। इट पंचेस अबव इट्स वेट इन फार अवे प्लेसेस। कन्वेंशनल बैटल जो है ये अपने सीमाओं में फाइट करता है, नॉन कन्वेंशनल बैटल ये दूर इलाकों में लड़ता है। ओके, होल ऑफ नेशन अप्रोच, अगर होल ऑफ नेशन अप्रोच देखना है तो आप इसराइल को देखिए। मेरे ख्याल में एकमात्र देश है जो होल ऑफ नेशन अप्रोच इस्तेमाल करता है और ऑन ग्राउंड साबित करता है, राइट? इसके पास छोटा सा पॉपुलेशन है विद अ यूनिक सिस्टम ऑफ रिजर्विस्ट एंड नेशनल सर्विस। सबको पता है किस तरीके से सब लड़ते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच। इट थ्राइव्स इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इसके सामने कोई आए ना आए, लड़ता रहता है। ये साहस है, पूरा देश के अंदर साहस है, ठीक? वो अभी इट्स एविडेंट, बड़ा क्लियर है। चाहे आप उसको बोलो टेररिस्ट बोलो, चाहे आप जेनोसाइड बोलो, कुछ भी बोलो, यूएन रेजोल्यूशन जो भी हो, वो अपना काम कर रहा है जिस तरीके वो चाहता है करना है। उसको किसी और से मतलब नहीं है। वो गाजा को सॉर्ट आउट करेगा, सॉर्ट आउट कर रहा है, करता रहेगा। चाहे वो सही तरीके से कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो अलग बात, बट कर रहा है, राइट? इसका एक प्लान है, वो प्लान जारी है। उस प्लान के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं।
एग्रेसिव एंड प्रिएम्प्टिव इन एग्जिस्टेंशियल बैटल, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल सवाल है, अगर वो लड़ेगा नहीं तो मरेगा। तो एग्रेसर होता है और इससे पहले कि दुश्मन कुछ करे ये कर लेता है। ये पहली बार है जब इनफैक्ट एक्चुअली दूसरी बार है जब ये लड़खड़ाया। ओके। और लड़ाई जो है ये दुश्मन के इलाके में ले जाता है, और अपने देश में नहीं लड़ना चाहता है, वो दुश्मन के देश में लड़ना चाहता है। वो अभी भी जारी है, चाहे वो लेबनान में क्यों ना हो, या सीरिया में क्यों ना हो, या गाजा में क्यों ना हो, या वेस्ट बैंक में क्यों ना हो। बिलीव्स इन यूजिंग हार्ड पावर अनहेजिटेटिंगली, इसको कोई संकोच नहीं है कि हार्ड पावर इस्तेमाल करना है। सेल्फ कंटेंट, टेक्नोलॉजिकली आत्मनिर्भर है, कंप्लीटली एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी। ठीक। और ये लड़ता है हर एक लेवल में, कन्वेंशनल बैटल लड़ता है, अनकन्वेंशनल बैटल लड़ता है, शैडो ऑप्स लड़ता है, और असैसिनेशन करने के लिए भी इसको कोई संकोच नहीं है। कुछ भी कर सकता है, पर इसराइल को बचाना है। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। हाई यूज एंड रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विद द शार्प इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद, सबको पता है, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडेप्ट। पर आजकल जो है ना पॉलिटिकली फ्रैक्टिशियस, ये आजकल नहीं पहले दिन से इसका पॉलिटिक्स टूटा हुआ है, पर एन वक्त पे सब इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सीख है हमें इसराइल से। यूएसए, यूएसए इज द फुल स्पेक्ट्रम प्लेयर, सबको पता है। ऑल फॉर्मेट फुल स्पेक्ट्रम प्लेयर विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट। 100 से ज्यादा बेसिस है पूरा दुनिया में, मेजर स्मॉल आउटपोस्ट सब कुछ। इट हैज डेवलप्ड एंड owns a mighty high-tech military machine encompassing air, land, sea, space and cyberspace। सब कुछ मल्टी डोमेन, फुल डोमेन ऑपरेशंस करता है ये, सबको पता है। और बैटल हार्डेंड। देखिए, अगर आप इफ यू एनालाइज यूएस बैटल, यूएस लॉस्ट आफ्टर वियतनाम, यूएस हैज लॉस्ट ऑल इट्स बैटल not because of its military, it has lost because of its political system, external affairs, उस चक्कर में हारा है। बट इट्स मिलिट्री फाइट्स वेल। उन्होंने वियतनाम के बाद सीख लिया। इट गॉट अ वेरी मोटिवेटेड मिलिट्री। It uses its enormous hard power and soft power unhesitatingly to protect and project its interests। क्योंकि इसका इंटरेस्ट ग्लोबल है, सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल करता है, हार्ड पावर भी इस्तेमाल करता है, और बिना सोचे इस्तेमाल कर लेता है। आपके अगेंस्ट कौन सा पावर आ रहा है आपको पता भी नहीं होगा इससे पहले कि वो पावर आ गया आपके ऊपर। शॉक एंड ऑ, जिस तरीके से हमने गल्फ वॉर में देखा, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, राइट। और it does not hesitate to carry out black ops through outsourcing to non-state contractors or actors। इसने तो शुरू किया है ब्लैक रॉक, ब्लैक वाटर, नॉट ब्लैक रॉक, ब्लैक वाटर। ठीक। अभी भी मर्सनरीज को भेज रहा है यूक्रेन के अंदर। इट कंबाइंस मिलिट्री ऑपरेशंस विद पॉलिटिकल एंड गेम्स, ranging from regime change to supporting dictators and autocracies to meet its ends। किसी से साथ भी बात कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएसए हैज हैड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेसीज, इट हैज हैड मिनिमम प्रॉब्लम्स विद डिक्टेटर्स। और उसका पॉलिटिकल एंड गेम बड़ा क्लियर है हर वक्त, या वो देश इसके साथ होना चाहिए या उसमें सत्ता बदलाव कोशिश करेगा। ठीक है। सो वेरी क्लियर, पॉलिटिकली वेरी क्लियर व्हाट इट इज डूइंग। वो अलग बात है कि सही है या नहीं है। जब भी वो सही नहीं था, इट हैज लॉस्ट। ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त जीतता है, बट इसका व्यक्तित्व आप सोचिए, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट स्टिल गॉट द बेस्ट मिलिट्री ऑन अर्थ। और इसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट सपोर्ट्स इट्स ग्लोबल एम्बिशंस, इट सपोर्ट्स इट्स इकोनॉमी। ओके। इट कीप्स चाइना कंटेंट।
इन द फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स थ्रू कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, क्योंकि हर एक देश के साथ अलायंस है, कुछ ट्रूप्स तैनात हैं, उससे क्या है, चाइना इज कंटेंट। मिडल ईस्ट में इट इज इन अ कांस्टेंट वनडे गेम, वनडे गेम रोज, हर चीज दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, चाहे वो इराक में हो या लेबनान में हो या सीरिया में हो, लीबिया में हो, और सऊदी अरेबिया में क्यों ना हो, हर रोज नया वनडे गेम चलता है। और T20 फॉर्मेट भी खेलता है ये। ओके, आप देखिए ओसामा बिन लादेन को गिराना T20 टाइप है, अयमन अल जवाहिरी को उड़ा देना अफगानिस्तान में, वो भी T20 टाइप है, और सुलेमानी उसको भी ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा दिया, T20 टाइप। तो ये टेस्ट मैच भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, और T20 भी खेलता है, राइट? इट हैज गॉट एन एक्सटेंसिव ऑल परवेसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क which ranges from human to alien through space based int। जितना इसका इंट है, मेरे ख्याल में चाइना के पास भी नहीं है, मेरे ख्याल में, मेरा हिसाब है ये। अमूमन हम इसको अंडररेट करते हैं, बट इट हैज गॉट ट्रेमेंडस कैपेबिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स ऑपरेशंस आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि इट्स गॉट ट्रेमेंडस प्रैक्टिस। ओके, एक चीज है चाइना के बारे में, अगर आप देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंटली इट हैज नॉट डेमर्ड फ्रॉम टेकिंग कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज सह लेता है ये, बॉडी बैग सह लेता है। एक जमाना था इट कुड नॉट टेक बॉडी बैग्स, पर आजकल वो नजर नहीं आ रहा है। डजंट लाइक बॉडी बैग्स, इसमें दो राय नहीं है, बट डजंट मीन इट डेमर्स फ्रॉम बॉडी बैग्स। ओके, इंडिया, इंडिया में क्या हम लेफ्ट हैं या राइट हैं या सेंटर हैं, ये मेरे को कभी समझ में नहीं, साफ बता रहा हूं। इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्पेस एंड मिसाइल पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, इसमें दो राय नहीं है। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर अहेड ऑफ द कर्व। एंड पर हम क्या हैं कि हम लार्जली कन्वेंशनल बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिव। वी आर टू डेमोक्रेटिक एंड टू टिमिड। आज की दुनिया में अगर आप एक शक्ति बनना चाहते हो, यू हैव टू बी मोर एग्रेसिव। यहां तक हम चाइना के साथ लड़खड़ा रहे थे 3 साल पहले एज ए देश। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे आप बात कर रहे हो, पर ये लहर था उस वक्त, हर टीवी चैनल में उस वक्त सब बोल रहे थे, ओ चाइना के पास ये है, चाइना के पास वो है, हमारे पास ये नहीं है, हम वीक है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, कट फलाना डिमका वगैरह वगैरह। आज भी अगर आप कुछ देखोगे तो सब बोलते हैं यार चाइना के पास हमारे से ज्यादा 6 गुना अर्थव्यवस्था है, हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं। यार पाकिस्तान के पास तो, पाकिस्तान और हमारे अगर आप मुकाबला कंपेयर करोगे तो हमारा उनका कहाँ 440 बिलियन का इकोनॉमी, हमारा आपका 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 8 गुना ज्यादा है। फिर भी आप वो आपको आंख दिखाता है, आपके साथ लड़ाई करता है, आप नहीं कर सकते हो इसके साथ। वी आर टू टिमिड, वी लैक पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन और विजन कि हमें करना क्या है इस इलाके में। मालदीव्स के बारे में परसों ही बात किया था, ठीक, उसके साथ मदद वदद सब कुछ करो, पर उसको जब चांटा देना था क्यों नहीं दिया हमने। उसको पता होना चाहिए था, उनके लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एक एंटी इंडिया बंदे को अगर आप चुनोगे तो इसका नतीजा ये होगा। ये प्रॉब्लम यह है कि एवरीवन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पीएमएफ, इंटेलिजेंसीज, इन सब का अपना अपना थ्रेट परसेप्शन है। हम सब सोचते हैं, अपना अपना सोच है, ये प्रॉब्लम है हमारा। इसीलिए हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है आज तक। इनके सबका अपना अपना डॉक्टर है और सबका अपना अपना कैपेबिलिटीज बनाता है कि अपना लड़ाई लड़ो अपने मुताबिक, एक देश का लड़ाई लड़ते नहीं हम, देश का सोच है ही नहीं। एकत्रित होके सारे शस्त्र बल दुश्मन के साथ लड़ाई करने का एक हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है।
ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं। ये कारगिल रिव्यू कमेटी में लिखा है। आज तक हम जूझ रहे हैं। एक सोचिए, एक देश जिसमें 9 महीने के लिए आप सीडीएस को नियुक्ति नहीं करते हो, तो आपका क्या विजन है? वी हैव लॉट ऑफ गिफ्टेड प्लेयर्स। ये क्रिकेट से लिया था मैंने। मेनी स्कोरिंग हंड्रेड्स फॉर इंडिविजुअल फेम, बट टीम कैन नॉट विन। एक जमाना था इंडियन क्रिकेट टीम में, सब सेंचुरी मारते थे। अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मार लिया, तेंदुलकर ने सेंचुरी मार दिया, पर जरा टीम तो हारता था भाई। यही प्रॉब्लम है हमारा भी। अभी तक ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये हटा नहीं। ये ये हटा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ वो तालमेल नहीं है। और ये मेरे को साफ नजर आता है, जिस तरीके से ये चीफ्स बोलते हैं, इनके अधिकारी और बोलते हैं। इनके विरुद्ध नहीं हूं, ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके लिए मैं कुछ भी करूंगा। पर अगर आप हकीकत को नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम। ओके। और जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस are those individuals who play on the back foot. They don't play on the front foot. Okay? And leave the ball at every opportunity. है ना? क्रिकेट में है ना, ओ या किस तरीके से उसने बॉल लीव किया, ये हम इसमें बड़ा माहिर है, हम छोड़ देते हैं बॉल। सब पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल है। वो जनरल नरवणे का किताब रुक दिया गया है, वो यही तो बोल रहा है कि गया कि भाई मैं करूं क्या। सबने बोला जो उचित है कर लो। सबने अपना बॉल छोड़ दिया इसके साथ। और ये नहीं पता हमें इसने क्या किया किसी के साथ, बट हमारा ये आदत है, क्योंकि पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन नहीं है। पर हमारा जो एक सॉलिड चीज है वो है हमारा जवान। सोना है, वेरी एक्सपीरियंस्ड। वो हमें कभी हारने नहीं देता। मेरे जवान मेरे देश को कभी हारने नहीं देगा, कभी ना दिया ना आगे करेगा। अब देखिए बांग्लादेश में ब्लिट्सक्रीग हुआ है, कारगिल में किस तरीके से हमने कैप्चर कर दिया, किस तरीके से हमने कैलाश ट्रेन में मैनूवर करके चाइना को रोक दिया। आज किस तरीके से हमारा नेवी जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रहा है। जवान, हमारे जवान। मैं अगर किसी एक आदमी के सामने सर झुकाता हूँ, वो है मेरा जवान। और मैं अपने जवानों के लिए जीता हूँ, जिया था, मरूंगा भी। इंडिया में जो है ना, एक वी हैव अ ट्रमेंडस पोटेंशियल, पर इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्शन फैक्टर नहीं है। और इंडियन क्रिकेट की तरह ऑन होम ग्राउंड वी आर अनबीटेबल। कभी कभी हो जाता है हार, पर लार्जली अनबीटेबल। ओवरसीज विनिंग करने की जरूरत होना चाहिए। ओवरसीज विनिंग का मतलब यह है कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर आना है, तो हमारा रवैया बदली होने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट, हमारे जो आर्म फोर्सेस है थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं। ये मेरा सोच है, तो मैंने बोल दिया। अगर आप लोग सबको, आपके दोस्तों को देना चाहते हो तो दे दीजिए। इसके बारे में मैं एक पूरा आर्टिकल लिख सकता हूँ, पर लिखूंगा नहीं, पर बोल रहा हूँ मैं। एक चेतावनी है, जिस दिन हम ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएंगे, हम प्रोफेशनली हार जाएंगे। हमारा शक्ति है कि कभी भी किसी नेता के सामने सर मत झुकाओ, देश का रक्षा करो। हमारा व्यक्तित्व, हमारा देश का विभिन्नता से हम अपना ये कैरेक्टर लेते हैं। हमारा काम है प्रोटेक्ट द नेशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट वो अपना राजनीतिक काम करता रहे। इसीलिए किसी ने हमारे देश में ना सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस को प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट है। किसी ने, हमारा बुजुर्गों ने सोच समझ के लिखा है ये। राइट। तो ये थे। अभी मैं आप सबका सवाल लूंगा धीरे धीरे, एक एक करके। ओके। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, लाइक बटन दबाइए। अगर आप पहली बार देख रहे हो, कृपया सब्सक्राइब कीजिए गाना शॉर्ट को। आपको अगर ये पसंद अच्छा हुआ तो आप अपने दोस्तों को बोलिए इसको देखें। ये जो वीडियो आज जो मैंने किया है वो थोड़ा हटके इसीलिए है कि मेरे ख्याल में ऐसे वीडियो आपको किसी और चैनल में मिलेगा, मेरे को पूरा यकीन है। राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। ओके। ओके, सवाल लूंगा सीधा। We all say that Chinese have not fought since 79, only a few skirmishes here and there. Don't make a force battle hardened. They rely too much on other means. How effective is the strategy? I explained to you, Shrutik, how effective their strategy is. It's untested. So there's a huge question mark on their entire strategy. And their strategy is not to fight. To that extent, they've been successful. Right. Yeah. So you and many have echoed this rhetoric that Pak is inconsequential nowadays. Yet I see some worry creeping back that they're now acquiring arms and terrorism is rising. I don't follow. No, don't worry too much. Don't worry about that. Certain amount of thing they will do, but it's not uh, hard enough for them uh, to create problems for us. The Indian Army, Bharat Sena, has always been Bharat first in every time, plus Naam, Namak, Nishan, plus appropriate weapons and munition. Your views? Yeah, that's the thing. Agar if we stick to this, Akash, will be okay. The day we get off track and become a little political, which I am worried about these days, I'm worried about it to a large extent. Uh, I don't have anything against any political party, but every political party is against each other, and we should not get caught in that. If there's a political party in power, respect it. Respect the people in power in government positions, but not their political positions. So that thing somehow we are these days not right. What is the operational strategic reasons we can ascribe to Pakistani's army's repeated failure? The Pakistan army, I said, put itself the first, the nation second, and the people the third. For us, there's the other way around. It's the nation first, people, and we are the last. Okay. So it's the cultural way of looking at it. Okay. The officers are bad because they are more interested in making money. Everyone joins the army for a better life, not for a better nation. Yeah. Kamakani, good. या ये तो हमने देख लिया. Can India capture Pakistan nukes? No, it can't. We've had discussions on conflicts arising out of clash of interest. What about basis for collaboration? Can we find common interests of collaboration bet amongst countries? Yes, we have. We have a lot of common interests and bases with Iran, Israel, uh, Russia, and USA. Even China, we had till 2020. It's only with Pakistan we have repeatedly failed. But I think with China also will fail hereafter. It's not as if we've not had a common basis uh, or we've not tried for a common platform for progress together, right? It's just that many times you might have that, but at the same time you should be ready to fight also. That's the whole story.
China is also aggressive in land grabbing with palm and five finger. Look, all this palm and five fingers policy was very nice 3 years back. This was part of their influence operations. Today, no one talks of that palm and five finger policy. I will written about it, right? The basis of this palm and five finger policy was also, if you see, it started just around 5 6 years back, not before that. There's no basis. There's no historical evidence. Okay, so this is part of their influence ops. Leave it at that. What can global south emerge as a powerful bloc? It can't, because it cannot emerge as a powerful bloc because economically it's not viable, and continentally the global south is spread over 3 4 continents, and they have their own problems, and they have their own cultures and history. They don't have a leader. China is one leader of the global south, right? But China doesn't care about others, it cares only about itself. We care about others, we don't have the financial muscle. So you cannot emerge as a powerful bloc ever. It'll be something like the non aligned movement, which had a lot of countries but very little power. Yeah, you maintain a stance that we don't need to match them in terms of conventional arms, but what about matching them in gray zone? No territorial limits. Yeah, you need to. That's why I said we are too timid. We need to match them in other ways of war. We cannot just keep sitting on our backside and say, no, no, we will not go into gray zone. You must have your own gray zone ops. You must have your own info ops. You must have your own narrative being sent out. We don't do it. That is why we are conservative, we are conventional. We are still fighting old thing. Okay. Old way of war. Would you not give credit to PAF for always you have long I think you're instigating me to say something, but let me tell you, the PAF is a useless force. Thank you. Zahid, I have now made out what you are. Don't worry. Okay, even though China is thinking to be a superpower, why doesn't it come to aid? And yeah, to answer this question. In modern times, can anybody win wars? Is it only about letting other side win or draw with little collateral damage? A very valid question. It's a very difficult thing to say that I'll win a war in today's times. The acid test of winning a war is not winning the battle. The acid test of winning a war is winning the political end game. Whether you can exit, whether you have a good exit strategy. So you're achieving your political goals and having a good exit strategy is important. Otherwise, you will not win a war today. And that, for many reasons, uh, many countries are not able to do it. Okay, most of the countries which have gone in, not able to do it. Okay, China is one country we need to focus and follow up very minutely. Yeah, I agree with you, no doubt. सर, जब तक हम फील्ड में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, किसी भी सुपर पावर से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जब हर कैपेबिलिटी पर आएंगे, कोई दुश्मन मैदान में नहीं पाएंगे। ये तो सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है गनवेद। अ, पर ये बात, इसके मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ने के लिए अ, अ, झिझकना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़े हमें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जो हथियार आपके पास है उसके साथ लड़ो। इसीलिए मैंने ईरान का एग्ज़ाम्पल दिया। ईरान के पास इट्स नॉट अ वेरी डिस्टॉर्टेड फौज। उसके पास एयरफोर्स नहीं है, बहुत आर्टिलरी नहीं है, सब बहुत कुछ नहीं है, पर उसके पास और कुछ है, जो इसको इस्तेमाल करता है। उसका देखिए, शक्ति जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है जिस तरीके से करना चाहते हो। आप सिर्फ बात करना चाहते हो, यहाँ से हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, और आप बोलते हो कि भाई रामायण में हम ये थे, तो हम आज के युग में भी वही है। तो भैया रामायण तो चला गया, खत्म। आज के युग में आप रामायण को वापस लाना चाहते हो, तो वो काम करो जिसने राम किया। सक्षम बनो लड़ाई के में, टैक्टिक्स अपनाओ, वो सब स्ट्रेटेजी सोचो। राम जी ने अपना लड़ाई रावण के अगेंस्ट लड़ाई के लिए क्या किया इन्होंने?
उन्होंने नेतृत्व दिया था और पूरा फौज अलग-अलग फौजों को इकट्ठा किया, फिर दवा बोला। हमारे ये 3 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी नहीं निकालना चाहते हैं। थिएटराइज़ेशन नहीं हो रहा आपका, जॉइंटनेस नहीं हो रहा। तो महाभारत और रामायण में जो लिखा है उसको इख्तियार तो करो। ये बोलना कि भाई सिर्फ जो रामायण में है उसको सीखो, और सीखो नहीं उसको इख्तियार भी करो ऑन ग्राउंड, वो ज़रूरत है। How Iran has indigenized its military. Iran has not indigenized military in a short time, in a very long time, over a long time, over the past 20-25 years. उसको पता था कि क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो कर सकता है उसने अच्छा किया। और मैंने बोला था आपको, पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन, अगर वो जिस दिन हमारे देश में पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक। वो है ही नहीं, क्या करें? व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन MQ9 ड्रोन ब्लॉकेज? भाई अभी तो ये कहानी आगे बढ़ेगा, डोंट वरी। हाउ ईरान हैज मैनेज टू फंड इट्स मिलिट्री राइज? ईरान के पास तेल, भाई तेल है यार, तेल बेचता है वो, आजकल तेल बेच रहा है चाइना को, तो पैसा है उसके पास। ओके, सो नो, देखिए वी हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, इसके बारे में मेरे को डाउट नहीं है। मैंने यही बोला, स्पेस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, राइट? और तीसरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वी हैव डन वंडर्स डिस्पाइट ऑल सैंक्शंस, दिस दैट एंड ऑल दैट, बट you cannot stop there. You have to go ahead. Why? What is it that we have learned from these three domains? Why can't we apply it in other domains? We don't. That's the problem. One lesson we've learned recently from Israel is that over reliance on tech is dangerous. Yeah, I agree with you. We have a lot of lessons to draw from Israel. Politico military fusion is the first. Unity, national unity, government forming. If you saw during Kargil time, were we united internally or during surgical strikes? तो अपना गवर्नमेंट कुछ बोल रहा था, अपोजिशन कुछ और बोल रहा था। There's a lot to learn. Shrutik, if you have to ask this question, then you have not understood what I've spoken today. How is it that the world's only superpower has failed? That's a different thing. I told you. They fail more because of their political problems, not because of the military has failed them. Isn't Pakistan ahead? Yeah, you are same thing. तुम पाकिस्तान के बैंड क्या डंका बजा रहे हो? पाकिस्तान तो टूट रहा है यार। वो आज फ्राइडे टाइम्स में देखो, उसने बोल दिया कि भाई हम इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। उसने अपना उठा लिया, ठीक है, चड्डी खोल दिया उसने। ओके सर, Russia's plan was to control eastern part of Ukraine. Oh, forget it. And distance it from NATO, which seems it has done. I don't think it has done. There's still a lot left in this story. USA is a major naval power to control all waters and very difficult to wage war against it. You will have to fight their navy to land troops in. USA is absolutely safe. You can't touch USA. Wouldn't you say Russia has failed? Yeah. Uh, Look, that in some measures Russia has achieved something. It has failed somewhere else, right? So Finland, Sweden are part of NATO, so the borders have shifted closer. In Ukraine, it has shifted back. So there is a mixed bag. It is still ongoing. We have not seen the end of the story. Let us see the end of the story, then we'll see. No one seems to have an exit plan in that entire kahani. Yeah, it should be from an iron fist with velvet glove. I only said that no day before yesterday in that webinar on Maldives. We should have an iron fist with a velvet glove. I Yeah, I agree with you. Jyoti, USA is not a continent power. That's why they can't. No, I don't agree with you. You don't need to be a continental power to do all this. You need to be
expeditionary force to do that. They have that. So don't go under that impression. Is the military declining due to our policies? To some extent, yes. Admire your passion, research, and application. Oh, thank you, Arunachal. I thought I'll give something different instead of talking of the normal stories which is going on. I hope you liked it, right? Uh, how is modernization going to impact conventional war? It is seen total modernization. You don't need total modernization. You need to be partly modern. You need to be modern where it counts. Okay, and then you'll turn the tables. So it's a matter of thinking. Why are all wings of Indian Army not to present a joint front with universally agreed continuous strategy? Is there a think tank? Look, it is something which our politicians and bureaucrats have also to blame because they didn't allow us to get together. It is also a lot to do with the structure of our armed forces, which were, uh, you know, attached officers to the MOD, never part of the MOD. They kept us separately and we grew separately for some reason. And we didn't build on our strengths, which we got during 71 operations. We didn't build on the strengths which we got during Kargil operations. Our Kargil Review Committee was very clear that we didn't fight as a nation. We fought as an army, navy, army and air force separately almost. Very little synergy. I mean, I don't have to say this. This is Mr. Subramaniam, K. Subramaniam, who was the chairman of the Kargil Review Committee, who has put it down in black and white. That's why he said get a CDS. And he's such a great man. He was अपना external affairs minister का father. Zahid Kar, PF is a piece of crap. Okay, I agree with him. Sparrow. Is guerrilla warfare only method for nations without military? Guerrilla warfare is, yes, if you don't have the military to fight, use guerrilla warfare. That's historic, there's no doubt. USA has university researching for strategic objectives. Why India does not? That's the problem of our growth. We have not, we are not connected well with our academia, and our academia is more interested in other things. We have never thought of all these things. So now we have started thinking of applicative technology, how we can contribute to strategy and things like that. Things are changing, but this will take a long time to come. What has happened in USA over the past 200-300 years won't happen in a hurry. It will not happen in my lifetime. It might happen in the next generation, my son's lifetime or my grandson's lifetime. Indian Army are always theaterized, but no, they are not this. They're not, Sharmila, they're not theaterized. Don't worry. Yeah, we like your lecture. Thanks a lot. It takes 2 hours from Delhi to Ghaziabad. How are your workforce? That's not a big deal. Whether you take 2 hours or 1 hour is not the big deal. Soch is important. We have to be together mentally. That is where we lack. That is where we lack, and that is where we lack. Politically, we lack that. For the first time, we've had a prime minister who talks of all this, but how successful he will be eventually to get everyone on the same platform is a question mark, right? He talks differently. I mean, I have to give it to him. He talks differently. He means a lot. He means well. And he says, what is it that you're doing differently in your approach to war? But have we found that solution? No. Has the ministry found a solution? No. Does it need an internal review? We don't know. Does it need an external pressure? Is a question mark. A lot of question marks. But it's not going to be an immediate process. It has to be a slow process. But has that process started in right earnest? I don't know. Right? Uh, unless the armed forces want it to happen, it will not happen. That much I know. Do they want it to happen? That's a question you must ask the Army, Navy, and Air Force chiefs. I'll ask them when I meet them. Okay, I think we've done with every question. But this thing, Seema says, very nice episode. You gave your true picture. Thank you. Yeah, I would request you to
just pass it on to everyone and let people know the true picture. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind. Uh, right? We'll talk tomorrow of something very interesting, the slow collapse of China with General Rajiv Narayanan. What I'm going to do, he's going to give his viewpoint, I'm going to give my viewpoint, and in the end, we're going to compare notes. That's what I spoke to him. I told him, don't give me a presentation. I'm not going to give you my presentation. We'll give our presentation to everyone, and then we'll talk of it. Okay? See you tomorrow. Till then, good night and Jai Hind.